So now the next topic is quantum numbers. Okay, what exactly in quantum number is, ये जो quantum number है, it gives us the address of electron, means electron exactly है कहाँ पे, that address of the electron is given by the quantum number. So how a quantum number gives us the address of an electron? So there are different quantum numbers for that, and the first quantum number is the principal quantum number, and the symbol for principal quantum number is n. जो principal quantum number है, its symbol is n. And what does this quantum number tells about? This quantum number tells us about the shell in which an electron resides, means कौन से शेल में, कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. लाइक दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, देन फोर्थ शेल. इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, दैट इज गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, लाइक फॉर द फर्स्ट शेल, ये जो हमारे पास फर्स्ट शेल है, फॉर इट n equals to 1. For second shell, n equals to 2. This is for first shell. This is for second shell. Then for third shell, n equals to 3. Okay, means for fourth shell, n equals to 4. For next, it is fifth, then sixth. Means for different shell, the value of n is different. And for the first shell, where n equals to 1, that shell name is K. For n2, the shell name is L. For n3, the shell name is M. For n4, shell name is N. Okay, for different values of n, the name of the shells are different. n1 belongs to K shell, n2 means L shell, n3 means M shell. Okay, and n4 is N shell, next is O shell. So the n, it gives us information about the shell into which an electron is belonging. Now from the energy formula, we had calculated that for n1, energy is given by, energy value is minus 13.6. For E2, energy is minus 3.4, and E3 is minus 1.5. And similarly we can calculate the energies of the next orbits. We had this formula, energy equals to minus 13.6 upon n square. From here we had calculated the energy of the different shells. For n1, energy is this much, for n2, energy is this much, and for n3, energy is this much. And similarly we can calculate for n4, n5 and so on. For the first shell, the energy comes out to be minus 13.6. For the next, it is minus 3.4, and then it is minus 1.5. Means as the shell is increasing, as n increases, जैसे n इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4, ये जो हमारे पास इधर एनर्जी की वैल्यू है, ये इसमें क्या हो रहा है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज. n की इंक्रीज करने के साथ जो एनर्जी है, दैट विल इंक्रीज. एंड व्हाट इज n? n is 1 2 3 4 5 6 and so on. And as n will increase, the energy will also increase. So the second quantum number is the azimuthal quantum number. The symbol for it is L. Okay, ये जो L है, it determines the angular momentum. Azimuthal quantum number जो L है, ये क्या फाइंड करता है, angular momentum. ठीक है, जैसे हमें n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल, कि जो मेन शेल, जो प्रिंसिपल शेल है, उस शेल में आगे कौन सी सब शेल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है ना, और उस सब शेल की वैल्यूज, एल की वैल्यू, दैट इज फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1. Okay, for example, if n equals to 1, अगर n 1 है, then what will be the value of L? तो L की वहां पे कौन सी वैल्यू होगी, here 0. कैसे आएगी 0? Because the value will go up to n-1. Here we have n1, so the L will come out to be 1. हम n की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 minus 1, so its value is 0. Let's calculate for n equals to 2. When n equals to 2, then
what is the value of L? Okay, as it starts from 0, okay, it starts from 0, then here n 2 minus 1, so it will be 0 comma 1. Okay, then next for n equals to 3, L will be 0, so the value of L comes out to be 0 1 and 2. This is the value for L. मीन्स अगर n 1 है तो L की वैल्यू से कितनी एक कम होगी, जो L की वैल्यू है दैट विल बी 1 लेसर देन n. अगर n 4 है, ओके ओके, इफ n इक्वल्स टू 4, तो मैंने क्या बताया, जो L की वैल्यू दैट विल बी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. तो L की वैल्यू कौन सी होगी, 0 n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 अप टू 3, 0 1 2 एंड 3. तो जो L की वैल्यू होगी वो n से एक कम होगी. इफ n इज 1, ओके, इफ n इज 1 देन L इज 0, क्योंकि उससे एक कम होगी. n इज 2, n 2 है तो जो L की वैल्यू होगी दैट विल बी 0 एंड 1. एंड देन फॉर n3 द वैल्यू ऑफ L इज 0 1 एंड 2. ओके, जो principal quantum number that gives the value of n, and the azimuthal quantum number, it is also known as orbital quantum number and subsidiary quantum number. Okay, and this gives us the value of the, means this gives us the information about the subshell. Okay, and the value of L is from 0 to n minus 1. Now here also for different value of L we use different designations. Okay, like when when L equals to 0, the symbol is S. When L equals to 1, symbol is P. When L equals to 2, symbol is D. When L equals to 3, the symbol is F. Okay, this is S, P, D, F. Okay, like when n equals to 1, we know the value of L equals to 0. Here n is 1, so we'll take n as 1. Now for L0 के लिए कौन सा सिंबल है, S. So we'll write S over here. So the subshell which we come across is the 1s shell. Here 1 is main shell, 1 is shell, और 1s क्या है, subshell which corresponds to the principal shell number 1. Okay, let's look for another one. When n equals to 2, we know that L varies from 0 to n minus 1. So the value of L will be 0 and 1. Okay, and here for n2, for first time L is 0 and then for n2 L is 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे L की दो वैल्यूज आई, तो L की दोनों वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सा सबशेल बनेगा, विल फाइंड फॉर बोथ, दोनों के लिए हम फाइंड करेंगे उसको. अभी मेन शेल तो दोनों में हमारे पास 2 ही है, मेन शेल इज 2. ओके, नाउ फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट L इक्वल्स टू 0. L 0 है तो कौन सी डेजिग्नेशन आएगी, S. हियर L इज 1, L 1 के लिए कौन सी आएगी, P. सो हियर वी हैव टू सबशेल्स दैट इज 2S एंड 2P. ओके, सो फॉर जब हमारे पास n 1 था तो सिर्फ हमारे पास एक ही सबशेल आई थी, एंड हियर वी गॉट 2 सबशेल्स. ओके, सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द, लाइक अभी हमने मेन शेल भी फाइंड कर ली और नेक्स्ट कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी फाइंड कर लिया. ओके, और हमें ये भी पता चल गया दैट n की इंक्रीज होने के साथ जो एनर्जी है दैट इंक्रीजेस. ओके, सो व्हाट एल्स इज बीइंग गिवन इन दिस थिंग, दिस azimuthal क्वांटम नंबर, इट इज दैट, जैसे हमने लास्ट में किया था कि n की इंक्रीज होने के साथ एनर्जी इंक्रीज होती है, सिमिलरली हियर जैसे L इंक्रीज होगा एनर्जी विल इंक्रीज. ओके, मीन्स जो F है, ठीक है ना, इसका L सबसे ज़्यादा है लाइक 3, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, उससे कम D की, P की उससे कम होगी और S की उससे कम होगी. ओके, नाउ द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द सिंबल फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज ML. इस क्वांटम नंबर में जो सिंबल है दैट इज ML. लाइक n हमें मेन शेल के भी बारे में बताता था एंड n मेन शेल के बारे में बताता था, जो L था दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल, वाइल दिस ML इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. ठीक है ना, मीन्स अभी जो इलेक्ट्रॉन है
जो शेल में रिवॉल्व कर रहा है इधर इन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जोन सी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इट विल पोजेस सम मोमेंटम, उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम जरूर हो. सो एज द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन द शेल, जैसे इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करेगा उसका कुछ ना कुछ वो एंगुलर मोमेंटम जरूर पोजेस करेगा. एंड ड्यू टू दैट एंगुलर मोमेंटम इट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है ना, मीन्स इट विल गिव राइज टू magnetic field. And this magnetic quantum number, it gives us the information about the behavior of electron in that magnetic field. इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, दैट इज बीइंग गिवन बाय दिस क्वांटम नंबर. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उसका कुछ ना कुछ उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम विल देन गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन दैट मैग्नेटिक फील्ड विल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, they then revolve, the electrons then revolve in the preferred region of space around the nucleus. हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जब शेल में रिवॉल्व करेगा, इट विल possess some angular momentum due to which it will give rise to some magnetic field, and then it will then अंडर जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस के अंडर क्या करेगा, इट विल देन गिव अस its orientation in preferred region. means preferred region means वो कौन सी स्पेस होगी, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इट विल रिवॉल्व. ठीक है ना, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की स्पेस में ज़्यादा रिवॉल्व करेगा उसके बारे में जो हमारी इन्फॉर्मेशन है दैट इज बीइंग गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. And that orientation is given by a magnetic quantum number. means how does an electron behaves in the magnetic field. जो magnetic field है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बिहेव करता है, that is given by a magnetic quantum number. And like n gives us information about main shell, okay, L gives us information about subshell. in that way जो ml है it gives us information about the number of orbitals. जो ml है ये हमें उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है ना, एन में हमने पहले क्या चेक किया, द नंबर ऑफ एल, ओके, एंड देन इट विल फर्दर गिव अस द वैल्यू ऑफ एम एल. ओके, एंड फॉर एल जैसे एन के कोरिस्पॉन्डिंग जो एल की वैल्यू थी दैट इज फ्रॉम 0 to n-1. इन दैट वे फॉर एल द वैल्यू ऑफ एम एल विल बी -l, 0 एंड देन +l. ओके, फॉर एग्जाम्पल if L is 0, अगर L 0 है then the value of ML it will also be 0, तब उसकी एक ही वैल्यू होगी. but for 1 the value of ML will be -1, 0, +L. okay, like for L0 the designation was S. ठीक है ना, मीन्स अभी यहाँ पे L0 है तो उसका डेजिग्नेशन S है, और ML इस L0 के कोरिस्पोंडिंग सिर्फ कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 0, मीन्स सिर्फ एक ही वैल्यू आई. तो इट मीन्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारे पास ml की सिर्फ एक ही वैल्यू आई दैट इज 0. तो इट मीन्स इसके कोरिस्पोंडिंग जो हमारे पास नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स है दैट आर जस्ट 1. बट L1 विच कोरिस्पोंड्स टू p, उसके कोरिस्पोंडिंग हमारे पास जो ml की वैल्यू है वो 3 वैल्यूज आई. इट मीन्स जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स है वो कितनी है, 3. p corresponding to -1, p0 and p+1. okay, so these are then also designated as px, py and pz. पहले हमें n की वैल्यू पता हो then we can find out the value of L, and from L we can find out the value of ML. now when L is 2, अगर L 2 होगा then value of ML will be -2 to 0 to +2, means -2, -1, 0, +1, +2. L2 के कोरिस्पोंडिंग द साइन इज D, मीन्स हमारे पास D जो सब शेल है, हाउ मेनी सब शेल्स, मैंने आपको पहले बताया जो हम ML है इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है ना, इधर मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था that it gives us information about the number of orbitals. और जब L2 होगा तो हमारे पास सब शेल D है और ML की वैल्यूज है -2, -1, 0, +1, +2, मीन्स 5 वैल्यूज है. इट मीन द नंबर ऑफ D सब शेल्स आर 5. S कितने थे, 1,
P was 3 and D is 5. Similarly, we can find for F, that will come out to be 7. Okay. Now as electron is revolving around the nucleus, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सेस, ठीक ना. सो देन दैट स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय स्पिन क्वांटम नंबर. वो हमें किसने दी, उसकी वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर, एंड द वैल्यू ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर इज इधर +1/2 और -1/2. इसकी दो वैल्यूज हैं एंड द सिंबल फॉर दिस इज ms. स्पिन क्वांटम नंबर का जो सिंबल है वो ms है और इसकी दो वैल्यूज है, इधर +1/2 और -1/2. ओके ना. सो इन दिस वी शो द इलेक्ट्रॉन इधर इन दिस वे और इन स्पिन अप और स्पिन डाउन, मीन्स +1/2 और -1/2. Okay, so this is the spin orientation of the electron which is given by spin quantum number. Thank you.